नहीं वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस बैलेट पेपर हमको चाहिए। नहीं वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस बैलेट पेपर हमको चाहिए। नहीं वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस बैलेट पेपर हमको चाहिए। Viewers, that was Mallikarjun Kharge blaming the EVMs for the Maharashtra poll disaster. Mr. Kharge launched Congress's campaign today demanding return to ballot papers. But wait, if the Congress does not trust the EVMs, what were Mr. Kharge celebrating just 2 days ago? Look at these pictures. Mallikarjun Kharge with Priyanka Gandhi Vadra, the celebratory mood is apparent, smiles all around. This was shortly after Priyanka Gandhi won the Wayanad seat with a massive margin. Shouldn't Mr. Kharge have told Priyanka Gandhi Vadra to give up the victory or the seat if the Congress has no faith in EVMs? Let's look at more Congress leaders who won the polls not through ballot papers but EVMs. Look at Nana Patole. Picture coming up on your screen. And Nana Patole with Vijay Wadattiwar celebrating after they won their seats in Maharashtra. Viewers, the reason I am underlining this is because the Congress's demand of ballot papers comes on a day when even the Supreme Court dismissed an anti-EVM petition and called out the hypocrisy of this ecosystem and said EVMs are fine when you win but tampered when you lose. Viewers, this is the classic case of deflection, of ducking responsibility. Congress leadership is facing a crisis, but instead of introspecting, they are pointing fingers at everyone else. Mallikarjun Kharge will not re-examine strategy or leadership because he can't. He can't question the Gandhis. But it's easy to blame those pesky EVMs that are the root of all evil according to him. The irony, viewers, is that even some Congress leaders and allies have rejected the EVM excuse. But Mr. Kharge is still resorting to blaming the machine and the mandate. Viewers, instead of blaming everyone else, why not take a hard look in the mirror? It might be painful, but it's the only way to truly address the problems. And who knows, the Congress might just discover that the solution lies within, not within the family. But if they introspect, they might get to the solution. Sample the reactions. जब इस देश में एक बड़े तबके का, एक बड़े मतदाताओं का विश्वास जो है वो ईवीएम से उठने लगे, चुनावी प्रक्रिया से उठने लगे, ऐसे में अगर अपोजिशन ये कह रहा है कि आप ईवीएम से के बजाय बैलेट पेपर की तरफ लौटिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए इस बात को। जब ईवीएम से चुनाव जीते तेलंगाना में, कर्नाटका में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, वायनाड में ईवीएम ठीक था और हरियाणा महाराष्ट्र हार गए, तो राहुल गांधी को बचाना है, इसलिए ईवीएम पर बहाना है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को डिसमिस कर दिया बैलेट पेपर की मांग जिसने की, और कहा कि ये क्या आइडिया है आपका कि जब चुनाव हारते हैं तब तो ईवीएम को दोष देते हैं, वरना ईवीएम ठीक है। आई हैव बीन in participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. If others have some sort of doubt about the efficacy of the EVM, it's really for them to say. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVM. You heard the reactions. Let's quickly open this up. Tuhin Sinha, National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Harshvardhan Tripathi, Senior Journalist. Dr. Anand Ranganathan needs no introduction. Varun Purohit, Leader of the Congress. Imran Ahmad Ali, Lawyer, Political Analyst. Vivek Silas, the National Spokesperson of the Samajwadi Party, completes the panel. Imran Ali, if Mr. Kharge has no faith in the EVMs, what was he celebrating there with Priyanka Gandhi Vadra? How did Priyanka win the polls? Through ballot papers? You know, the whole debate we need to understand one thing, that if in case there is a shifting of the mechanism, it does not give a competitive advantage to anyone. If in case there is a voting by way of ballot papers, that will be for everyone. When we talk about even the US elections in the past, Elon Musk in a town hall in Pennsylvania very specifically said, he said voting machines were too easy to hack.
Now, I feel that that man would know more about technology amongst anybody on the panel. The creator of SpaceX, the CEO of Tesla, and if he makes a statement like that, and especially with the fact that he backed President Trump, I think you and I are not competitive enough to make that call. No, don't include me in the list. 1 minute, Imran, you can speak for yourself. Don't drag me into this. I just want to ask you one question. If you were to pick between Elon Musk and Supreme Court, what would you pick? That's a very unfair comparison. Why? You can compare apples, oranges, carrots, radish, potato, onion. How can you no. Facts of the case are completely different. We are talking about the specific use of a particular technology. Yeah, you said so when the ballot papers are there, it will be for everyone. Are EVMs not for everyone? I'm sorry. Yes. No, don't say sorry at the beginning of the debate. You know, you'll have time. I said, don't give up so early. I'm not giving up. I am saying it gives a competitive advantage to no one. Everyone will have the same method of voting. Everyone will have the same method of checking. So then, why is that a problem? Is that method not available to all candidates? Where is the discrepancy? That's what exactly I'm saying. The discrepancy is not here. The discrepancy is that if there's a distrust on a certain society over the use of these EVMs, and let us see what comes out of the efforts of the Congress. Has Priyanka Gandhi Vadra questioned her win? But we need to understand the fact that if in case we go back to ballots, Varun Purohit. We're not discussing that. I'm not on that. Okay, Imran, you know, if we do go back to ballots, that was a good attempt for everyone. It was a good attempt. Varun Purohit ji, ये खड़गे जी और प्रियंका गांधी जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, किसका जश्न मना रहे थे ये? देखिए, हिंदुस्तान में राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। और हर आदमी अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी या वोटर्स इलेक्टोरल सेट एक अलग क्रॉस सेक्शन ऑफ 10% और 20% इफ दे आर नॉट सेटिस्फाई, तो उनको सेटिस्फाई करना डेमोक्रेसी में आवश्यक। खड़गे साहब बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियंस हैं और संसद में भी खूब कितने समय से सदस्य रहे हैं, विधानसभा में भी रहे। अगर उन्होंने कोई बात उठाई है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और रही बात ईवीएम की, प्रियंका गांधी का क्वेश्चन कर रहे हो, मिस्टर खड़गे में सॉफ्टवेयर की अपडेट करते हो। मैं आपसे वरुण जी, आप तो मैंने कौन ऐसी मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हल्के में नहीं ले रहा है। हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी मिठाई खिला रहे हैं, ये क्या किस बात का है ये मिठाई? मेरी बात तो सुन लो पूरी। आप इसी बात की मैं कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी पे बात चल रही है। जब आप 1965 की वॉर जीतते हो तो कैसे टैंक और कैसे हवाई जहाज थे, आज किस प्रकार के आपको हवाई जहाज और टैंक चाहिए, तो थोड़ी आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हो मैकेनिज्म को डेमोक्रेसी के अंदर। अगर पब्लिक चाहती है कुछ चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे। आप क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? उपचुनाव करा लो, दिल्ली का चुनाव आ रहा है, जनता में विश्वास, अगर अविश्वास हो रहा है तो आपको विश्वास जगाए रखना डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो कहा ये विश्वास कमीशन को करना चाहिए। प्रॉब्लम देखिए, ये मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये कह दिया कि आप जहां जीतते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है, जहां आप हारते हैं वहां सारे सवाल पूछ देते हैं आप। डॉक्टर रंगनाथन, बिफोर तुहिन सिन्हा responds to the political question, what do you make of this blatant and naked hypocrisy? Good evening, Pranesh, and good evening to my fellow panelists. Now, if the elections were to be held on ballot paper, as the Kharge now wants, and I suppose many in the Congress also want, and if Congress loses, they will actually blame the quality of the ballot paper. These guys are incorrigible. ये कहेंगे चावड़ी बाजार जहां से बैलेट पेपर लाए थे वो गड़बड़ है, वो मोदी ने बेच रखा है। What are we talking about? This discussion was dead and buried for years, and I don't know, every time Congress and other people lose elections, they bring out this. And you know, Imran is a very good friend, very intelligent person, but please, Imran, remember that Elon Musk was talking about the EVMs that are connected to the cyberspace. Our EVMs are independent. They are not connected at all to the cyberspace. They cannot be hacked. There have been so many multiple challenges by the Election Commission, by so many other commissions, challenges to come and hack it. Nobody has been able to manage it. So, you know, please just don't blindly follow what Elon Musk says, even when his context is something different. Supreme Court has gone into this. Supreme Court has said this, and I think, Pranesh, let's be serious out here. I think time has come, because this conspiracy theory
undermines our electoral process. It gives wind to all this losers and conspiracy theory. The Supreme Court has to come out. And I am for free speech. I am for conspiracy theorists. But if we have laws that condemn Holocaust deniers to prison, then maybe I'm not recommending it, but maybe because in this country we have laws that goes against undermining the judicial and other processes constitution, this possibly should be looked at that. So Supreme Court should come out and say, don't you dare undermine the electoral process. We've looked into this for 20 years and there is not a single instance where the EVMs have been conspiratorially hacked or EVMs have been manipulated. So just shut it. You were saying that the EVMs are not connected to cyberspace. There are many people who are wondering if Congress is connected to, either the grassroots or the voters. I don't believe these theories, but they are doing the rounds. Tuhin Sinha, now answer the question. If you have, nothing to hide, or if you're so confident of your policies, leadership, etc., why don't you take up the challenge? Good evening, Pranesh. Good evening, everybody. We are mature people. We don't act in haste. The very fact that it took a journey of 27 years starting from 1977, when the first design for an EVM was conceived. It was way back in 1977. An affiliate of BEL, Bharat Electronics Limited, was involved. And it took a process of 27 years before in 2004, the entire country had EVM voting. So you want us to go back a good 47 years just because there are some doubting Thomases who have no faith in their own ability. Now the point is, yes, in 2009 we also had caste aspersions, but based on several such complaints, the Supreme Court had specifically directed for the issuance of VVPAT. I don't know how many Congress people know the full form of VVPAT. But the fact is, 2014, there were 8 constituencies where VVPAT was instituted, voter verified paper audit trail. That got increased to 100% in 2019 and that continues to be 100% today, wherein in every constituency, 2% of the votes are compulsively corroborated through voter verified paper audit trail. After that, there is no scope for any anomaly, no scope for any doubt. And the biggest joke of the year, Kharge ji is today talking about, EVM tampering. I saw a video of Pawan Khera where he is saying that in states like Jharkhand, the BJP does not tamper with EVM machines because it wants to project a fair image. It provides a level playing field, but in bigger states, it definitely manipulates the EVM. Don't be surprised if Mr. Kheda tomorrow says that the Congress is losing elections and lost the 2014 elections to Modi or to the BJP, NDA, what have you, because he wanted to, project a fair image. Vivek Silas, जवाब दीजिए. नहीं, मेरा तो बस यही जवाब देना है प्रणेश जी कि as Dr. Ranganathan said about booth capturing, yes, we belong to that generation where we have casted our vote through the ballot papers. But what is the role of the election commission and the security forces? How can, in this modern world when you have every news coming out, when you have people with their smartphone, how can you, just say that booths will be captured? I can't understand नहीं, तो ये आपको स्मार्टफोन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईवीएम से दिक्कत ये विवेक जी देखिए प्रणेश जी, मेरी बात सुन लीजिए. I am telling you because this is a very serious matter. I'll give you 2 examples. What happened in Maharashtra? There was an independent candidate along with his wife, mother and child. They casted their vote for that particular candidate. Now that candidate says, okay, suppose my wife, my mother and my child didn't vote for me, but I voted for myself. कौन सा कैंडिडेट है? I'll give you his name and entire thing. He said कि मेरा वोट कहाँ गया डॉक्टर साहब? Dr. Anand Gangadhar, I want to ask, that man has said कि where is my vote? Because on that booth, the both count, for that particular candidate, the booth count was 0. ये एक फेक न्यूज चल रही है, शायद आपने वो पढ़. देखिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए सर, मैं नहीं कह रहा हूँ आप फेक न्यूज. जो सीरियस मैटर है वो फेक न्यूज. मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा ही चल रहा है एक और कैंडिडेट का, मुझे याद नहीं है कि वो एमएनएस के कैंडिडेट है या किसी और के, उसमें लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया. The question of just 5 seconds. मुझे बस ये बताइए, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोला बैलेट पेपर पे जाना चाहिए हमको?
वो आप लोग तो जीत गए, लोकसभा में भी इतने सीट जीत गए। अखिलेश यादव जी ने क्या बोला कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भी जीत गए तो भी हम बैलेट पेपर से ही चुनाव करना पसंद करेंगे। शरद पवार वो बोल रहे हैं कि नहीं ईवीएम में कोई प्रॉब्लम। ओके डॉक्टर हर्षवर्धन जी मैं आ रहा हूं, ये डॉक्टर साहब एक और प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। सॉरी आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट, और हर्षवर्धन जी की भी टर्न नहीं आई है, माफ कीजिएगा, लेकिन विवेक जी ने मुझ पे एड्रेस किया था। विवेक जी आप जानते हैं आपके कैंडिडेट थे, नहीं आपके नहीं थे लेकिन अलायंस पार्टनर के थे, फहाद। उन्होंने एलेज किया कि वो 19th राउंड 18th राउंड तक जीत रहे थे, 19th राउंड में 99% वाली बैटरी वाली ईवीएम घुस गई और वो हार गए। ये सारा एक न्यूज थी, एक्सपोज हो चुकी है। आप प्लीज ये कॉन्स्पिरेसी पे ना जाइए विवेक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। वो बीच में 10-12 राउंड भी ऐसे हुए थे, बीच में वाले 10th राउंड 11th राउंड जिसमें वो लीड नहीं कर रहे थे। ऐसे झूठ बोलना, गुमराह करना आपको शोभा नहीं देता विवेक। बोलिए सर, बोलिए 5 सेकंड। आई थिंक डॉक्टर रंगनाथन बीइंग वन ऑफ द बेस्ट पैनलिस्ट एंड ऑथर, what I believe, the question of tampering would end as soon as we shift to the ballot paper. Okay. It will bring an end to that. हर्षवर्धन जी देखिए आपके पीछे फ्रेम में अंधेरा है, लेकिन आप डिबेट पे प्रकाश डालिए, क्योंकि यहां पे अभी जिस दिशा में ये लोग लेके जा रहे हैं आगे मुझे तो अंधकार ही नजर आ रहा है। नहीं प्रणय जी, कतई कोई अंधकार नहीं है, देश में रोशनी बहुत है और ये लोकतंत्र की रोशनी है। आज संविधान दिवस है, भारतीय संविधान में 125 के आसपास अमेंडमेंट हो गए, संशोधन हो गए, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे वो आज के नेताओं की तरह जड़ नहीं थे, वो चैतन्य लोग थे, प्रवाहमान लोग थे, बुद्धिमान लोग थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं जब जैसी जरूरत होगी। अब कमाल की बात यह है, अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन हम जो है वो बैलेट से चाहेंगे। और मैंने देखा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जो उस वक्त की लेटेस्ट कारें थी उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए मंगवा ली थी। उस वक्त काफिला उनका आ गया था। अभी भी जब उनका काफिला आप देखें तो पुरानी वाली जीप में नहीं दिखते हैं, महिंद्रा की या और पुरानी जो एम्बेसडर कार है उसमें वो नहीं नजर आते हैं। खैर ये तो एक बंद हो गई है। अब जो मूल बात कर रहे हैं त्रिपाठी, प्रधानमंत्री कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ बंद हो गई, ऐसे बैलेट भी बंद हो गया है, ऐसे ही बैलेट भी बंद हो गया है। पुराने थोड़ा बुद्धि खोलिए ना, बंद द्वार क्यों कर लिया बुद्धि का? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नांदेड़ लोकसभा का उदाहरण दिया और कहा कि हमारी एक सीट बढ़ गई। नांदेड़ लोकसभा अंतिम राउंड तक वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया और प्रधानमंत्री के उल्लेख करने के बावजूद नांदेड़ हार गई। 1457 ये है मार्जिन, यानी 1457 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई। सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जीता? यहां भाजपा हारी, कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस जीत गई। अब ये लोग जो कहते हैं कि यहां भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाते हैं, दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीट भाजपा जीतती है और वही जनता अरविंद केजरीवाल को जिताती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इन्हें पब्लिक के विजडम पर सवाल खड़ा करना है, इन्हें झारखंड में हेमंत सोरेन की शानदार जीत उसको अपमानित करना है। शर्म आनी चाहिए नेताओं को, जनता इनको लगातार देखती है। और ये बेसिकली आज संविधान दिवस है, इस संविधान दिवस पर देश के लोकतंत्र को, जनता को अपमानित कर रहे हैं, उसको डिमीन कर रहे हैं, उसको लगातार कम बुद्धि का बताने की कोशिश कर रहे हैं और जनता इनकी बुद्धि ठिकाने लगा देती है। इसीलिए जब चुनाव होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मैंडेट और मशीन को ब्लेम करना बंद कीजिए। मुझे तो लगा विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे, ये तो एम्बेसडर कार सुन के एक्साइटेड हो गए। मुझे लगा ये बोलेंगे कि देखिए हमने अपना सिंबल साइकिल ही रखा है, या कुछ और ऐसा बोल देते, लेकिन ये एम्बेसडर सुन के एक्साइटेड हो गए। पर वरुण जी, डॉक्टर रंगनाथन, यस नहीं, आपने इनको विवेक श्रीवास्तव बोल दिया, फ्रॉइडियन स्लिप है, विवेक साइलस नहीं, विवेक साइलस। इतना तो समझते नहीं, वो गलती से हो गया। चलिए अब इसके लिए क्या एंकर बदल देंगे कि आप मैंने कुछ कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आप। तो मैंने भी था, कुछ कहा हो तो कहिए। चलिए, नहीं ये पूछना बाकी है कि ये ओके वरुण जी, आपके जो अलायंस पार्टनर है, देखिए शिवसेना कह चुकी है कि कांग्रेस जो है वो लाइबिलिटी बन गई है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि इनके बस का नहीं है, अगर मोदी या बीजेपी से टक्कर होगा तो सिर्फ केजरीवाल लड़ सकते हैं। टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी को अलायंस लीडर बनाइए। तो आप मशीन बदलेंगे या जो लीडर्स बदलेंगे?
प्रणेश जी, बार बार ये बात हो रही है। भी हर्षवर्धन जी ने कहा जड़ता, चैतन्य थे, जड़ता की बात करी, तो थाली कटोरे बजाना चैतन्यता है कि जड़ता है देश के अंदर? ये पूर्वजों को विचार कर रहे होंगे आज किस किस देश को किसको नेतृत्व में दे दिया थाली कटोरे बजाने के लिए। दूसरी बात आप जो कह रहे हो बार बार ईवीएम की, मैं कह रहा हूं जब संविधान बदलने का हमारे पूर्वजों ने प्रोविजन इसीलिए छोड़ा था, समय काल परिस्थिति के अनुसार आप अमेंडमेंट करो। तो जो अभी हवाला दिया साहब, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट चालू किया, तो क्यों नहीं आप, मैं यही तो कह रहा हूं, आप विपक्ष की वॉइस को क्यों दबाना चाहते हो? वो भी एक पार्ट है, जनप्रतिनिधि है, चुन के आ रहे हैं, आप भी चुन के आ रहे हो। तो अगर किसी को उसमें कोई डाउट है तो समय काल परिस्थिति के अनुसार 1/4 1/5 सीटों पे आप करा दो बैलेट पेपर से, दिल्ली का चुनाव करा दो बैलेट पेपर से। तो अविश्वसनीयता जो देश में आ रही है उसको आप समाप्त कर सकते हो, क्यों नहीं करना चाहते? या तो आप में मॉरलिटी एथिक्स नहीं है, भयभीत हो, आप भयभीत नहीं हो, आपके अंदर सत्यता है, तो आप करा दीजिए कुछ पार्ट में, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? वही तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष पे आरोपित करना कांग्रेस ऐसी, राहुल गांधी ऐसा, भी शुरू हो जाएंगे प्रियंका गांधी ऐसी, तो ये चीज नहीं चलती देश के अंदर। डेमोक्रेसी है, मैंने आपको शुरुआत में कहा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। अगर कहीं अविश्वसनीयता है तो जो भी सरकार होती है, चाहे किसी पार्टी की हो, उनकी जिम्मेदारी है विपक्ष की वॉइस को सुनना और अविश्वसनीयता को दूर करना। विपक्ष की तो बात सही है वरुण जी, आपने जो थाली कटोरा है, मैं उसका अभी जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, उनका रिएक्शन सुनिए। ये कार्ति चिदंबरम है, इन्होंने देखिए क्या कहा जब ईवीएम पे सवाल पूछा, और सिर्फ यही नहीं है, आपके अलायंस शरद पवार से भी सवाल पूछा गया ईवीएम पे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या शरद पवार वेटरन नहीं है खड़गे जी की तरह? लेकिन वो किसको ब्लेम करेंगे? खड़गे जी कर नहीं सकते, क्या पूछेंगे ऊपर कि लीडर बदलने नहीं बोल सकते, तो वो बोल रहे मशीन बदल दीजिए। सुनिए कार्ति चिदंबरम को, सुनिए आप। I have been participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. If others have some sort of doubt about the efficacy of the EVM, it's really for them to say. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVM. Did you hear that, Imran? Is Mr. Karti Chidambaram a Sanghi? Is he from the RSS, BJP? No, that's not the case here. I want to bring three basic points here. First, when we talk about the EVMs, it is no one's version that all 100% of the EVMs have a problem, number one. Number two, since the specific question came to me with regard to the efficacy, I want to remind all of us about this year, at the beginning, January, February, the mayor elections of Chandigarh. The same Supreme Court that I was being asked to choose between was the same Supreme Court that overturned those elections, asked for the physical ballot papers, verified that, and then overturned it. I'll give you another example. Yes. Imran, that goes against you. The mayor elections were done by ballot. The Supreme Court verified. The Supreme Court verified those ballots and realized, and also there was a video in which the officer was captured defacing those same ballot papers. Yes, my only contention here is that if in case those ballot papers did not exist, it would not have gone to the Supreme Court. Let me finish, doctor. The other issue is, I remember every year annually we have elections at the High Court in which the machines come from the commission. Now we need to understand that I have been physically present where one of the machines malfunctioned and those votes were not calculated. So you can understand why I am against it, because I personally, A, from where I live, B, from those particular votes that were not counted in the president elections of our High Court. Now, no one is saying, 1 minute, Imran, so now 1 minute. I get the point. I get the point. But you know, this ballot paper argument, like Dr. Ranganathan was saying, it goes against what you were arguing in the first round of questioning. Now, I mean, according to your logic, ballot papers are more problematic than the EVMs. But you know, the larger point is, look, no one, and Dr. Ranganathan said, even Harshvardhan Tripathi ji said that, look, you can have, it's a machine at the end of the day, it can malfunction, you can have concerns, complaints, the election commission will address it. Yes. Now, if there's a problem in the Congress party, will you disband the Congress or change the leader? What will you do? What's more doable? Not Dr. Ranganathan? The other question of the... No, you see, Imran, my good friend, I must come in here, first of all, that you contradicted yourself, because the ballot papers were the one during the Chandigarh mayoral election that was the problem. So when you say go back to ballot
ballot paper, that is what you would get 100 times over. You would get ballot stuffing. You would get all those things that you see Bengal Panchayat elections. Now, number two, I think, Pranesh, honestly, time has come for Supreme Court to step in and say once and for all, we have checked this matter ad infinitum, ad nauseum. This has to stop. हर्षवर्धन जी, अब कितने एग्जाम्पल देंगे, कितने इलेक्शन का बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी अब तक 89 इलेक्शन हार चुके हैं, इसीलिए अब ये नया कांग्रेस में बैलेट पेपर का रागा शुरू हो गया है। जो हमारे पैनलिस्ट है वरुण पुरोहित ये कह रहे हैं कि एक बार करके तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब इसका क्या जवाब है? वो बोल भी रहे थे कि थाली कटोरा अगर हो सकता है तो बैलेट पेपर क्यों नहीं हो सकता? नहीं प्रणेश जी, ये लोग एक्सप्रेसवे हाईवे सब बंद करा देना चाहेंगे, ये कहेंगे वंदे भारत छोड़ के पुरानी वाली पैसेंजर चलवा दीजिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से भाग गए थे हार के डर से, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किशोरी लाल शर्मा जीत गए। ईवीएम काम की या नहीं काम की? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हैं, 33 रह जाती है भाजपा को। ईवीएम काम की या नहीं की? और अभी अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ना चाहिए और बहुत जरूरी है वो पढ़ना। प्रणय जी, उन्होंने कहा अगर आपको लगता है तो टॉप 3 कंटेंडर यानी एक विनर और 2 रनर अप, तो जो दोनों रनर अप हैं उनमें से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मुश्किल हुई है, उसके यहां के सारे वीवीपैट वो मिलाए जाएंगे, पर्चियों का मिलान होगा। लेकिन आज तक कोई भी कैंडिडेट नहीं गया है। हां, अगर झूठ बोलेंगे, गलत तरीके से जाएंगे तो फिर उन्हीं से वो खर्च वसूला जाएगा। क्यों कोई कैंडिडेट नहीं जाता? कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, उद्धव को जाना चाहिए, या जिसको भी लगता है हर किसी को जाना चाहिए। और नहीं तो कम से कम चलो जहां आपको संदेह हो वहीं का 1-2 का करा लो। और जहां तक रही बात पर्ची के मिलान की, रैंडम पर्ची मिलान होता है, आज तक किसी में कोई गड़बड़ नहीं मिली है। ये झूठ बोलना, अफवाह फैलाना नेशनल टेलीविजन पर बंद करना चाहिए, चाहे वो 99% बैटरी का हो या फिर कि किसी के मां, पत्नी, बहन का भी वोट डाला और उसको नहीं मिला। ये झूठ और अफवाह है। इस तरह की फर्जी बातें राष्ट्रीय टेलीविजन पर नहीं करनी चाहिए। विवेक जी नाराज हो गए, आपने कहा फर्जी बातें, नाराज हो रहे हैं, बोलिए। नहीं, हर्षवर्धन जी ने कहा फर्जी बातें इस तरह की नहीं चलनी चाहिए, तो इस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। ये तो गलती फिर टाइम्स नाउ और प्रणेश जी की हो गई कि इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं भाई। ये हर जगह आप क्या रोक देंगे? आप जर्नलिस्ट को भी रोक देंगे कि इस तरह की डिबेट ना करें, ये तो गलत है। आई थिंक बीजेपी शुड टेक इट एज अ चैलेंज। तुहिन सिन्हा, विल यू टेक अप दिस चैलेंज? विल यू टेक अप दिस एज अ चैलेंज? नो प्रणेश, देखिए Pranesh, we take up intelligent challenges. We will not take in challenges which are self-destructive. Do you know, in a country of the size of Indonesia in 2021, when elections were held through paper ballots, some 280 people had died counting, in the process of counting due to exhaustion. In a country of the size of India, the counting of paper ballots today might take a few weeks. No. The fact is, like I mentioned, after the introduction of VVPAT, this discussion should close. इससे पहले तो बैलेट पेपर में चुनाव ही नहीं हुए. It might take a few weeks. 2% of the votes. अरे आपको VVPAT का फुल फॉर्म बताइए. It might take 72 hours. That is all. बताइए. आपको कुछ जानकारी नहीं है. It will take a few weeks. How can you say it will take a few weeks? राहुल गांधी At the most it will take 3 days. को अपनी हरकतों पर कोई कंट्रोल नहीं है. आज महाराष्ट्र में इलेक्शन खत्म हुए, वो दोबारा सावरकर को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया. अगर आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं है, आप फिर वीवीपैट और फिर आप ईवीएम को ही ब्लेम करेंगे. अगर आप अपनी हरकतें नहीं सुधार सकते हैं, let's quickly remind our viewers what the Supreme Court said. हर्षवर्धन जी ने तो एक एस्पेक्ट बताया. सुप्रीम कोर्ट ने आज viewers, the Supreme Court today called out the hypocrisy of this anti-EVM lobby, for lack of a better word. It said, when you win, there is no problem. Dr. Ranganathan, the Karnataka Chief Minister hasn't complained. The Himachal Chief Minister hasn't complained of the mandate being stolen. And the other election that the Congress wins, there are no complaints. Karti is not complaining. Wadattivar has no problems. Nana Patole is smiling. No, it's an assault on common sense. You look at Arvind Kejriwal. He was complaining about EVMs malfunctioning and EVM should not be used and revert to ballot paper until he won 67 out of 70 seats. Uske baad ekdam chup. So ask him to, relinquish the position that he had. So, but Vivek ji ki baat mein address karna chahta hu because that is disturbing. I really respect Vivek ji. Vivek ji, 2 cheezein. Ek, ballot stuffing hogi,
चीटिंग होगी, मैल प्रैक्टिसेस होंगी जब बैलेट में जाएंगे। और दूसरा, आप प्लीज जानिए, लास्ट टाइम इंडिया हेल्ड अ जनरल इलेक्शन यूजिंग बैलेट पेपर वाज पॉसिबली 25 years ago। तब हमारी वोटिंग पॉपुलेशन वाज पॉसिबली लेस देन 300 मिलियन। आज 900 मिलियन वोटिंग पॉपुलेशन है। जो आप 2-3 दिन कह रहे हैं, दैट वुड एक्चुअली बी 2 months। नो। और वरुण पुरोहित, एक सवाल ये कि आप खड़गे जी आज कह रहे थे कि हम एक भारत जोड़ो जैसा आंदोलन लाएंगे। सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, फिर आप भारत जोड़ो जैसा कैंपेन यात्रा निकाल के लोगों को क्या मिसलीड करना चाहते हैं? और जो हर्षवर्धन जी ने कहा, देखिए अमेठी में राहुल गांधी हार जाते हैं, वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर कांग्रेस एक दूसरा कैंडिडेट वहां चुनती है और वो जीत जाते हैं। तो प्रॉब्लम ईवीएम में है या कैंडिडेट में है? प्रणेश जी, फिर आप इस सारी डिबेट जो है ना कांग्रेस को और कांग्रेस की बात को क्रिटिसाइज, गांधी परिवार को क्रिटिसाइज करने में लग रही है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, आपके पास में इलेक्टोरल प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, इट इज फॉर द, वही तो उसी का जवाब दे रहा हूं ना मैं। आप इसको डेमोक्रेसी क्या है? अगर मान लीजिए विपक्ष अगर कोई बात उठाता है तो उसको आप कहोगे वो तो इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो ये नहीं है, ये करोगे क्या आप? मतलब इनके बीजेपी, मैंने कहा बीजेपी इंडिया है, बीजेपी इलेक्ट्रोल वोटर्स है, मोदी जी इलेक्ट्रोल वोटर, बाकी कुछ है ही नहीं। अगर कोई प्रश्न उठा रहा है तो उसका जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। और बार बार सुप्रीम कोर्ट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? ये तो इलेक्शन प्रोसेस में, मैकेनिज्म में जो चेंज होगा, संविधान दिवस में आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी करेगा। सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन जाता है, सुप्रीम जाएगा, लिटिगेशन जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम है? वरुण पुरोहित, सुप्रीम कोर्ट का काम ये थोड़ी है मैकेनिज्म चेंज करेगा। मैं बता रहा हूं, आप तो चैनल को तो कुछ भी बोल देते हैं, आईटी सेल है, गोदी मीडिया है, ये है, वो है। सुप्रीम कोर्ट से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अगर कोई बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो क्या प्रॉब्लम? कब बोला सुप्रीम कोर्ट का? मुझे फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट में जो लिटिगेशन जाएगा उस पर निर्णय करेगा। अगर नाम ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अरे आप सुनना नहीं चाह रहे हो मेरी बात को? आप नहीं, आप सुनना क्यों नहीं चाह रहे हो मेरी बात को? आप सुन रहे हो दूसरों की। तो जो मैकेनिज्म है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको चेंज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में तो अगर मैं कोई लिटिगेशन करूंगा उसको जजमेंट देंगे वो। तो अच्छा, एक बात ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज करेगी। कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। क्यों नहीं बदला? आपने बैलेट पेपर क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं किया वरुण पुरोहित? नहीं, बीजेपी के नेता ने किताब नहीं लिखी। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं ना, क्यों नहीं किया? वो तो तुहिन सिन्हा ने जवाब दे दिया। हमारे मन में कुछ संदेह था, मैं किसी ने इस पैनल पे नहीं बोला दैट यू कांट आस्क क्वेश्चंस, यू कांट हैव कंसर्न्स, यू कांट। और आप बोल रहे थे डेमोक्रेसी क्या है? आप बताएंगे व्यूअर्स को हिपोक्रेसी क्या है? आप बताइए हिपोक्रेसी क्या है? हिपोक्रेसी यह है कि संविधान एक स्टेट में जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां सेफ है, और जहां हार जाती है वह संविधान खतरे में है। जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम सेफ है, जहां हार जाते हैं तो ईवीएम में दिक्कत है, बैलेट पेपर। यह हिपोक्रेसी। हर्षवर्धन जी, ये गलत असेसमेंट है क्या? नहीं प्रणेश जी, एलन मस्क की भी बड़ी चर्चा हुई। एलन मस्क का वो पुराना बयान था। पहली बात तो इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता है, हमारी स्टैंड अलोन यूनिट होती है। लेकिन एलन मस्क ने अभी परसों भी कुछ कहा है। उन्होंने लिखा है कि हम अभी भी वोट काउंटिंग कर रहे हैं और भारत में 64 करोड़ वोट गिन लिए गए एक दिन में। ये किसी ने इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। एलन मस्क का ही ये पोस्ट है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपको किसी प्रोसेस पर कोई डाउट है तो फैक्ट्स लेकर आइए। आप कुछ ऐसी चीजें लेकर आइए जो सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने टिके। सुप्रीम कोर्ट इनको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इनको सत्ता देने का कोई रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन को सत्ता नहीं दिला सकता है। भारत का जो संविधान है, भारत का जो लोकतंत्र है, वो बहुत, जिसको कहें कि सॉलिड तरीके से बनाया गया है। इसमें सबकी अपनी भूमिका है और वो भूमिका जनता ही तय करती है। सत्ता तो आपको जनता ही देगी। उसको नाराज करके, उसको अपमानित करके, उसको अपशब्द कह के आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। Okay, viewers, let's quickly move on. Imran Ahmed Ali, thank you for joining us on debate number 1.